بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے مقدس اور ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس جگہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ طواف کرتے ہیں، جبکہ کروڑوں لوگ اس جانب رو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ 2030 میں خانہ کعبہ اس طرح کا ہوگا، یہاں پر 50 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکیں گے۔ اس وقت بھی 1 لاکھ لوگوں کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی جگہ موجود ہے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کس طرح کا تھا؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں دعا کی جائے تو انسان کی دعا رد نہیں ہوتی؟ آج کی ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے 15 ایسے سیکرٹ کے بارے میں بات کریں گے جن کا ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر فرشتوں کو پیدا کیا۔ آسمان پر ایک کعبہ ہے، یہ پہلا کعبہ تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ یہ فرشتوں کا وہ کعبہ ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں۔ ایک دفعہ طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ بیت المعمور کے نیچے بیت اللہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر بنایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش علیہ السلام نے اس عمارت کو بنایا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس مقام کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد بنو جہرم نے اس کی تعمیر کی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد قوم عمالقہ نے اس کی عمارت بنائی۔ اس کے بعد قریش کے قصہ بن کلاب نے تعمیر کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کی۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کے بارے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا وہ گھر مکہ میں ہے۔ طوفان نوح کے وقت بیت اللہ کی مٹی اس طرح کی تھی، بیت اللہ مٹی کے اندر بہہ گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم سنایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ اتنی کھدائی کی کہ کعبہ کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ پھر اسی بنیادوں پر خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دور میں کعبہ کچھ اس طرح کا تھا۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو، آدم علیہ السلام کے بعد جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو اس کی کوئی چھت نہیں تھی، جبکہ 2 دروازے تھے۔ ایک دروازے سے اندر داخل ہوتے تو دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ اس وقت جو خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا وہ مستطیل شکل کا تھا۔ جن دیواروں پر دروازے تھے وہ لمبی جبکہ دوسری دیواریں چھوٹی تھیں۔ بعد میں اس جگہ کو کیوں کم کیا گیا اس کے بارے میں بھی آگے بات کریں گے۔ بارشوں کی وجہ سے جب کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا تو قریش مکہ نے فیصلہ کیا خانہ کعبہ کی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ سب نے یہ عہد کیا وہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسوں سے کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے مالدار ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہوئے کہ جس سے خانہ کعبہ کی تعمیر اصل سائز کے مطابق کر سکیں۔ پیسے کم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی رہیں۔ جب دیواریں 6 فٹ تک پہنچی تو انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر خود نصب کرے۔ مکہ کے تمام قبیلوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچ لیں۔ قبیلے کے نوجوانوں نے قسمیں کھائیں اگر کسی نے حجر اسود کو نصب کرنے کی کوشش کی تو وہ سب کٹ مریں گے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ چادر کو زمین پر بچھایا گیا اور حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر چادر کے وسط میں رکھ دیا۔ پھر سب قبیلے کے سرداروں نے چادر کو تھام کر حجر اسود کو وہاں رکھ دیا جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اب ہم خانہ کعبہ کے 15 سیکرٹ پوائنٹ کی بات کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہے حجر اسود جو کہ مقدس پتھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کا بوسہ لیا کرتے۔ مقام ابراہیم کے اندر وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں اور حجر اسود یہ دونوں جنتی پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پتھر جنت سے اتارے۔ اس پتھر کے رائٹ سائڈ پر گرین رنگ کی لائٹ ہوتی ہے جہاں سے طواف شروع اور ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر سے کہا،
मुझे पता है तू ना फायदा दे सकता है और ना नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बोसा देता हूँ कि मोहम्मद ने तुम्हें अपनी लबों से चूमा है। ये पत्थर जब जन्नत से उतारा गया तो सफेद रंग का था, मगर लोगों के गुनाहों की वजह से ये काला हो गया। शुरू में ये एक पत्थर था, मगर अब ये टुकड़ों की शक्ल में तब्दील हो गया। इसके 8 टुकड़े हैं। हजर अरबी में पत्थर को, जबकि अस्वद काले और स्याह रंग को बोला जाता है। हजरी अस्वद को नुकसान न पहुंचे इस गर्ज से सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पत्थर के इर्द गिर्द खौल चढ़ाया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसे सोने में मार दिया। 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने इसे चांदी में तब्दील कर दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को पकड़ने के लिए खाना काबा पर इतने पत्थर बरसाए कि हजर अस्वद के 3 टुकड़े हो गए। इस पत्थर को छूना मुबारक है। ये पत्थर क़यामत के दिन हर वो शख्स की गवाही देगा जिसने इसका इस्तेलाम किया। इस पत्थर को छूना गुनाहों से कफारे का बायस बनता है। जब हजर अस्वद चोरी होने के बाद मिला तो ये टुकड़ों की शक्ल में था। इसके 8 टुकड़े खाना काबा में लगाए गए, जबकि 6 टुकड़े तुर्की में हैं। 4 टुकड़े तुर्की की मस्जिद महमूद पाशा में लगाए गए, जबकि 1 टुकड़ा तुर्की की बुरी मस्जिद में लगाया गया। 1 टुकड़ा अजीम सुल्तान के मजार पर लगा है। नंबर 2, खाना काबा में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है जिसे बाबे काबा कहा जाता है। तबा वो पहला बादशाह था जिसने खाना काबा का दरवाजा लगवाया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया तो उसके दरवाजे जमीन के साथ थे। जब कुरैश ने काबा तामीर किया तो उसको जमीन से 2.5 मीटर ऊंचा रखा गया। इसका मकसद ये था कि काबा के अंदर सिर्फ खास लोग ही दाखिल हो सकें। उस वक्त से लेकर आज तक अगर कोई खास मेहमान आता है तो उस वक्त ही काबा के दरवाजे को खोला जाता है। काबा के दरवाजे पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरानी आयत लिखी है। इस पर यह भी लिखा है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया वो कभी भी रब की रहमत से महरूम ना हों। काबा के दरवाजे पर यह भी लिखा है, दाखिल हो जाओ अमन और सलामती के साथ। तबा वो पहला बादशाह था जिसने काबा का दरवाजा बनवाया और इसकी चाबी तैयार करवाई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक वही दरवाजा था। फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने दरवाजे को तब्दील करके 11 हाथ लंबा दरवाजा बनवाया। इस वक्त खाना काबा में जो दरवाजा नस्ब है, इस पर 280 किलोग्राम सोना लगाया गया। इसकी तैयारी में 10,43,020 रियाल खर्च हुए, जबकि सोना इसके अलावा है। इस दरवाजे को बनाने में 12 माह लगे। इसे उस्मानी दौर में 1398 में काबा की जीनत बनाया गया। तीसरे नंबर पर है मिज़ाबे काबा। मिज़ाब अरबी में परनाले को कहते हैं। खाना काबा की छत पर लगा परनाला, जिसे बारिश का पानी काबे की छत से हतीम में गिरता है। ये परनाला सोने का बना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में काबा की छत नहीं थी, लेकिन जब कुरैश ने काबा तामीर किया तो काबा की छत बनाई गई। फिर परनाला लगाकर पानी को नीचे उतारा गया। जब बारिश होती है तो लोग इस परनाले के नीचे नहाते भी हैं। इसे रहमत का परनाला भी कहा जाता है। इस परनाले को कभी लकड़ी, कभी चांदी और कभी सोने का बनाकर लगाया गया। इस परनाले के नीचे अल्लाह की खास रहमत होती है। चौथे नंबर पर है शादरवान। खाना काबा के साथ नीचे जो सफेद रंग का पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर जो कुंडे लगे हैं, जिनके अंदर रस्सी डालकर खाना काबा के गिलाफ को बांधा जाता है। काबा के साथ लिपट कर लोग दुआएं करते हैं ताकि किसी के पांव जख्मी ना हों। ये कुंडे बहुत ही नरम हैं। इन कुंडों को शादरवान कहा जाता है। 5वें नंबर पर है बैतुल्लाह का हिस्सा हतीम। हतीम वो जगह है जिसने इस जगह नफल पढ़े, गोया उसने बैतुल्लाह के अंदर नफल पढ़े। यही वजह है यहाँ बड़ी तादाद में हजूम होता है। हतीम के इस हिस्से को हजरी इस्माइल भी कहा जाता है। अब्बासी दौर में इस हिस्से को दोबारा खाना काबा में शामिल करने का इरादा किया गया, मगर इमाम मालिक ने इसकी मुखालफत की। हतीम के इर्द जो सफेद रंग की यू शेप की दीवार है, इसे ही हतीम कहा जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल काबा तामीर किया गया। उस वक्त हतीम की कोई दीवार नहीं थी। जब कुरैशी मक्का ने खाना काबा तामीर किया तो पैसे कम होने की वजह से खाना काबा के एक हिस्से को तामीर किया गया। अब ये मुरब्बा शक्ल का है। इसके साथ जो जगह बाकी बची, उन्होंने दायरे की शक्ल में पत्थर रख दिए। फिर सब इसी तरह तामीर करते रहे। ये जगह इसलिए भी मुकद्दस है। इसी हतीम के अंदर इमाम काबा नमाज पढ़ाते हैं। जब नमाज का वक्त होता है तो ज़ायरीन से ये जगह खाली करवाई जाती है, जबकि इमाम काबा यहाँ पर इमामत करवाते हैं। हतीम वो मुकद्दस जगह है जहाँ पर किसी की दुआ रद्द नहीं होती, क्योंकि ये बैतुल्लाह का हिस्सा है। जिसने इस जगह नफल अदा किए, गोया उसने बैतुल्लाह के अंदर अदा किए।
अगर आपको अल्लाह के घर में जाने का मौका मिले तो यहाँ पर लाजमी नफल अदा करना। छठे नंबर पर जो मुकद्दस जगह है वो है मुल्तजम। हजर अस्वद और बाबे काबा के दरमियान वाले हिस्से को मुल्तजम कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह की रहमत हर वक्त बरसती है। इस जगह अपने चेहरे, अपने हाथों और अपनी चेस्ट को लगाकर दुआ करना सुन्नत है। यहाँ पर भी कोई दुआ रद्द नहीं होती। सातवें नंबर पर अल्लाह के बहुत ही प्यारे नबी और खलील के पांव के निशान हैं। कई किताबों में लिखा है ये उस वक्त के निशान है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा तामीर कर रहे थे। जब दीवारें ऊंची हो गई तो ये पत्थर लाया गया जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारें मुकम्मल की। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गईं ये पत्थर भी ऊंचा होता गया। बाद रवायात में ये भी लिखा है ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया। तो वो अपने मकाम पर खड़े हो गए और कहने लगे, लोगों आपके परवरदिगार ने एक मकान लिया है, लिहाजा उसके पास हज अदा करो। फिर फरमाया और मकामी इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। इस जगह नफल अदा करना बहुत ही मुकद्दस है। इस जगह पर भी इंसान की हर दुआ कबूल होती है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मुजज़ा था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पर खड़े हुए तो ये मोम की तरह नरम पड़ गया। इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उंगलियों के निशान भी वाज़िह थे, मगर ज़ायरीन हाथ फेरते रहे जिसकी वजह से निशान मिट गए। जब इसकी सफाई करनी होती है तो इर्द गिर्द एक प्लास्टिक की दीवार खड़ी करके इसे खोलकर सफाई की जाती है। 8वें नंबर पर काबा के 4 कोने हैं, जिनमें दरवाजे के साथ और पीछे वाले कोने को खास फजीलत हासिल है। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया वो मुस्ततील शक्ल का था, जबकि जो कुरैश ने तामीर किया वो मुरब्बा शक्ल का है। काबा छोटा होने की वजह से 3 और 4 नंबर कोने खत्म हो गए। जो नया खाना काबा था उसके अंदर 1 और 3 नंबर कोने रह गए, क्योंकि ये वही कोने हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाए। बाबे काबा के साथ जो कोना है उसे रुकने हजर अस्वद कहा जाता है, क्योंकि ये हजर अस्वद के ऊपर है, जबकि पीछे वाले कोने को रुकने यमानी कहा जाता है। इस कोने की सिमत यमन की जानब है। नीचे वो जगह है जहाँ पर खाना काबा का गिलाफ नहीं। ये वो जगह है जिसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ लगाते यानी इस्तलाम करते। ये जगह भी मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस है। यहाँ पर भी हर दुआ कबूल होती है। हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान आप ये दुआ करते, ऐ रब हमें इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है अता फरमाइए और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। खाना काबा वो जगह है जहाँ इंसान गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। जब ज़ायरीन हराम बांधकर यहाँ तवाफ करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे जो कुछ मांग रहे हैं इन्हें अता कर दो। खाना काबा के इस कोने को रुकने शामी कहते हैं, क्योंकि इसकी सिमत शाम की जानब है। जबकि ये जो आखिरी कोना है इसे रुकने अराकी कहा जाता है, इसकी सिमत अराक की जानब है। 12 नंबर पर है खाना काबा का गिलाफ। इब्तिदा में खाना काबा बगैर गिलाफ के था। तबा पहला बादशाह था जिसने बैतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया। हजरत अबू बकर के दौर में सफेद रंग का गिलाफ था। हजरत उमर साल में 2 दफा काबा पर गिलाफ चढ़ाते। इस तरह काबा पर मुख्तलिफ रंग के गिलाफ चढ़ाए गए। अब गिलाफ काबा काले रंग का है। खाना काबा का गिलाफ हर साल 9 जिलहज को तब्दील किया जाता है। 5 घंटे तक तकरीब जारी रहती है। पहले पहल खाना काबा के गिलाफ को रस्सियों की मदद से ऊपर की जानिब बांधा जाता था, लेकिन अब हज के दौरान काबा के साथ कॉटन का कपड़ा बांधा जाता है। इसका मकसद ये है कि हज के दौरान बहुत ज्यादा हजूम होता है, जिसकी वजह से लोग काबा के धागे को खींचते उसे कैंची की मदद से काटने की कोशिश करते हैं। 14 नंबर पर है खाना काबा की ग्रीन लाइट। यहाँ से तवाफ शुरू होता है और 7वें तवाफ के बाद यहीं पर खत्म होता है। सफा मरवा में भी ग्रीन रंग की लाइट है और ऊपर बोर्ड के ऊपर भी लिखा होता है। 15वें नंबर पर आप छोटे छोटे पत्थर देख सकते हो। ये वो जगह है जहाँ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ना सिखाई। इसी जगह नमाज का वक्त, नमाज में क्या पढ़ना है बताया गया। ये जगह बाबे काबा की राइट साइड पर है, जबकि 7 जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। दोस्तों, खाना काबा में एक ऐसी जगह है जहाँ किसी की नमाज नहीं हो सकती, वो है खाना काबा की छत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर उतारा गया तो सबसे पहले उन्होंने बैतुल्लाह का हज किया। फरिश्तों ने आकर खुशखबरी दी और कहा, हमने आपसे 2000 साल पहले बैतुल्लाह का हज किया।
حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتوں تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آدم علیہ السلام بھی یہی طواف میں پڑھتے رہے۔ قیامت کے دن کعبہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردے کے ساتھ لٹکے ہوں گے، اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حجر اسود کو 2 آنکھیں اور زبان دی جائے گی جس سے وہ کلام کرے گا، ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے حق و صداقت کے ساتھ